morning, everyone. So today we are starting Augustan Criticism Part 2, Alexander Pope's essay on criticism. This essay was published in 1711 and this is not an essay but it is a poetry. Though it has a title essay, but this poetry is written in iambic pentameter, in 744 lines. What are the qualities or the special ideas about this poetry? What is something like a special pointers about this poetry? First of all, the title is essay, but it's a poem. Second thing, he uses the literary device Antana classes. He used the literary device Antana classes, which means repetition of a word multiple times with different meanings. Repetition of a word multiple times in a poem and every time with different meaning. He used two words, wit and nature. Wit for 44 times and nature for 21 times, and every time with a different meaning. This is something very important about this poetry, right? So this is essay on criticism in which he has written the poetry in iambic pentameter, 744 lines, and he has divided this 744 lines in three parts. He divided this poetry into three parts. In first part, he talked about or he gave the suggestions to the poets how to be a best poet. In second part, he gave suggestions to the critics how to be a good critique. And in third part, how to write a good poem or how to create a good literature. So, after knowing this basic thing about the poetry, let's start with the first part of the criticism. So, the first part is how to be a good poet. That is lines 1 to 200. First 200 lines are dedicated to this part, and in this he has given three major suggestions. Like first is follow classics, second follow nature and the classical rules and regulations of writing, the criteria of writing. Third, be a knowledgeable person. A poet should be a person who had a complete knowledge of literary devices, their usage, and obviously the old ancient criticism. So a poet should be aware about the criteria of writing. A poet should be a poet should follow the classical writers of Hebrew literature, and third, he should follow nature, romanticism, and he should be original in his writing. So these are the three major suggestions he has given in the part 1, now how to be a good poet, right? So सबसे पहले ध्यान रखिएगा इन चीजों को, हिंदी में भी बता रही हूँ. For to be a good poet, एक अच्छा पोएट बनने के लिए उसने क्या बोला, जो भी आपके एंशियंट राइटर्स हैं उन सबको फॉलो करना है. जो भी एंशियंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं राइटिंग के, पोइट्री राइटिंग के, ड्रामा राइटिंग के, उन सबको फॉलो करना है. एंड थर्ड, जो भी क्रिटिसिज्म दिए गए हैं, जो भी पुराने सजेशंस दिए गए हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए. तो ये तीन उनके मेजर सजेशंस हैं कि क्राइटेरियाज को ना भूला जाए और एंशियंट्स को फॉलो करो. दैट इज द बेस्ट पार्ट. नाउ सेकंड, 520 लाइंस, 201 से 520 लाइन, और इसमें क्या दिया है, हाउ टू बी अ गुड क्रिटिक. हाउ टू बी अ गुड क्रिटिक, इसके लिए भी उन्होंने सजेशन दिए हैं. फर्स्ट, द सेम सजेशन इज देयर, वन शुड फॉलो एंशियंट्स. एंशियंट्स को फॉलो करना है. सेकेंड सजेशन इज वन शुड बी a knowledgeable person and should be aware about the classical rules and ideas. ठीक है, जो भी क्रिटिक है वो नॉलेजेबल होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, उसको सारे पुराने और नए सजेशंस एंड रूल्स, क्राइटेरिया ऑफ राइटिंग पता होना चाहिए. थर्ड उसमें आ जाएगा, थर्ड इज वन शुड बी अनबायस्ड.
ठीक है, एक क्रिटिक कैन नॉट बी बायस्ड पर्सन। तो जो भी क्रिटिक है, जो क्रिटिसिज्म कर रहा है, ही शुड नॉट बी बायस्ड अबाउट द पोइट्री और द टाइटल और द पोइट। वो किसी को लेके बायस नहीं हो सकता, उसका फेयर ओपिनियन होना चाहिए। फोर्थ, ही शुड बी साइकोलॉजिकली साउंड पर्सन। जो भी क्रिटिक है वो साइकोलॉजिकली साउंड होना चाहिए, साइकोलॉजिकली मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो, वो साइकोलॉजिकली इल हो, वो किसी चीज से को लेके सैडिस्ट हो, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ही शुड बी अ पर्सन हु कैन मेक अ फेयर जजमेंट। ठीक है, वो मेंटली साइकोलॉजिकली एजुकेटेड साउंड होना चाहिए। फोर्थ उसके अंदर आएगा, ही शुड बी अ पोएट। तो दिस इज अ वेरी मेजर पॉइंट। उसने कहा एक क्रिटिक को क्रिटिक होने के साथ साथ पहले पोएट खुद होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो पोएट्री लिखना नहीं जानता वो उसको क्रिटिसिज्म कैसे करेगा। जब तक वो उस इमोशन को खुद रिप्रेजेंट करना नहीं जानता तब तक वो दूसरों के प्रेजेंट किए हुए इमोशंस को क्रिटिसाइज कैसे करेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडियाज ही हैज गिवन। और इसने उसमें यही कहा है कि जो भी पोएट है जब वो लिखेगा कुछ भी चीज, तो लिखते लिखते वो डेफिनेटली ये चीज अपना हमेशा ध्यान रखेगा कि हाउ वन शुड क्रिएट a poetry and what are the criterias of writing, how a poet used to do writing, and how to make a judgment. Along with that, he has said one more thing, that a poet's duty is not just to criticize but to enhance knowledge. एक क्रिटिक का काम केवल कमियां निकालना नहीं होता, उनके रीडर्स के लिए उस चीज को क्लियरली वहां पे प्रेजेंट करना भी होता है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पार्ट इन विच ही हैज सेड ऑल दीज 5-6 पॉइंट्स हियर। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसने हाउ टू बी अ गुड पोइट में कुछ नहीं कहा, उसने गुड पोइट में भी यही कहा कि वन शुड बी मतलब अ पोइट शुड बी एबल टू प्रेजेंट हिज मॉरल आइडियाज फेयरली, उसको अपने मॉरल आइडियाज क्लियरली प्रेजेंट करने आने चाहिए। ही शुड बी अ पर्सन ऑफ अ ग्रेट थॉट, उसको जो थॉट है उसके वो ग्रेट होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, उसमें सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, उसको एंशियंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसको क्राइटेरिया ऑफ राइटिंग पता होना चाहिए। ही शुड बी अ पर्सन हु यूज्ड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस थिंग, दैट मीन्स कि पोइट्री राइटिंग उसका पैशन होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया उसने पोएट के लिए लिखे थे। और क्रिटिक के लिए सबसे बड़ा होता है कि ही शुड बी अ पोएट फर्स्ट, देन ही शुड बी अ साइकोलॉजिकली फिट पर्सन। ठीक है, देन इसके बाद आपका आ जाता है अगेन द थर्ड पार्ट, 9:551 to 7:44, और इसमें इन्होंने दिया है हाउ टू राइट अ गुड पोएट्री। जितने भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ उसमें आप लोग खुद ही देखेंगे कि ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं रिपीटेटिव हैं। जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी तक बताए हम ऑलरेडी इन पॉइंट्स को सुन चुके हैं किसी ना किसी क्रिटिसिज्म में, तो इसने उनको फॉलो करा है कहीं। ठीक है, अब किसको करा है, कब करा है, कैसे करा है, वो भी मैं बताऊंगी आपको। सो थर्ड पार्ट के अंदर 9:521 to 7:44, दैट इज हाउ टू राइट अ गुड पोएट्री। इसमें ही हैज गिवन सजेशन। फर्स्ट ही सेड one should not use Alexandrine writing, that is serpentine line। इसने जो स्पेंसेरियन स्टैंजा की लास्ट लाइन जिसको उसने स्पेंसेरियन लाइन एलेक्जेंड्राइन लाइन बोला है, उसने कहा है कि one should not use it and he named it serpentine। ठीक है, what he called it serpentine। ये serpentine lines यूज नहीं करनी चाहिए। Second, he said overflowery language यूज नहीं करना चाहिए। Third, for writing a good poetry, use the appropriate devices and metaphors, proper use करने चाहिए। Fourth point is the moral ideas should be acknowledged by the readers easily। जो भी रीडर उस पोइट्री को पढ़ रहे हैं वो उसके अंदर जो भी मॉरल सेंस दिया हुआ है या जो भी मैसेज एक पोइट का है वो क्लियर होना चाहिए, वो उनको फटाफट से समझ में आ जाए। लैंग्वेज के लिए इसने कहा है द लैंग्वेज शुड बी एप्रोप्रिएट टू द सब्जेक्ट। जो भी आपने टाइटल चूज किया या सब्जेक्ट चूज किया है उससे रिलेटेड लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इफ इट इज अ पेट्रियोटिक देन द लैंग्वेज शुड बी लाइक दैट, इफ इट इज अ रिलीजियस देन द लैंग्वेज शुड बी लाइक दिस, लाइक सिमिलरली ही सेड। देन उसके अलावा उसने कहा है एलिट्रेशंस जहां तक हो सकता है उसे अवॉइड करना चाहिए। वन शुड नॉट यूज एलिट्रेशंस, इफ इट कैन बी अवॉइडेड one should avoid it, one should avoid writing alliteration, one should avoid using alliterations in poetry। ये 5 मेजर सजेशंस उन्होंने दिए थे। अब बात ये है कि हम जितनी भी ये चीजें सुन रहे हैं उन्होंने कहाँ से ली, उन्होंने किस तरीके की थीम्स की बात करी है, कहाँ से इन आइडियाज को लिया है। तो ऑब्वियसली द कंप्लीट आइडिया ऑफ दिस वर्क essay on criticism are taken from the 5 ancient writers। ठीक है, हम जो भी ये आइडियाज हैं जो पहले सुन चुके हैं उन्होंने ये कहाँ से लिए हैं। He has taken all these ideas from 5 ancient critics।
5 एंशियंट क्रिटिक्स एंड पोएट्स जिनको इन्होंने यूज किया है मेजरली, किस किस को इन्होंने यहाँ पे यूज किया है? एरिस्टोटल, हॉरेस, लॉन्जाइनस, वर्जिन एंड क्विंटिलियन। ये 5 राइटर्स को उसने यूज करा है फॉर राइटिंग दिस क्रिटिसिज्म एंड ही ऑर्डर्ड एवरीवन टू फॉलो होमर। He asked every poet and critic to follow Homer and critics to follow these ancient writers. So this was your essay on criticism, and with this we are summing up our Augustan criticism. This is what Augustan criticism is all about now. इसके बाद जो आपका एज आता है that is transition. ट्रांजिशन के अंदर आपका ऐसा कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, केवल डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है जिनका लाइव्स ऑफ पोएट्स आ जाता है, और लाइव्स ऑफ पोएट्स के अंदर प्रीफेस टू शेक्सपियर, उसके एसेज वगैरह का जितना भी क्रिटिसिज्म है वो आता है. So I will definitely take or I will definitely make a video of those essays, those important essays for you shortly after that. So see you guys very soon again in the same class. Subscribe our channel, press the notification bell so that you will get the notification as soon as our videos are getting uploaded here. So stay tuned, stay blessed, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें. Thank you.